बातचीत करी प्रेसिडेंट ईडी एंड इंटीग्रल एविएशन के यानी इंडिगो के मेरे सहयोगी ने। आइए देखते हैं वो इस पॉलिसी पे क्या कहते हैं। Subjects, whether it is ground handling, whether it is international flying, whether it is new airport, cheaper airports, and for us especially as Indigo, where we are in the business of actually increasing the propensity of travel by trying to lower the cost of doing business in India. For us, it's in the right direction. Look, there will be things that will probably not be palatable to everybody. There will be some increase in air ticket cost. But at the same time, look at the other way around, that there will be more connectivity into some areas. For us, ground handling seems like a very promising piece because I think definitely it will bring down the cost of doing business in India if ground handling goes in the direction that it is saying. Probably the one thing that I'd request over the next 3 weeks is also to look at harmonization of the DGCA policies to more with the FAA and EASA. I thought that was one piece that I was probably expecting, and but there's still 3 more weeks to go. But look, when was the last time we had such a comprehensive policy that was laid out for everybody to consider? So in that sense, a very positive moment. How do you see 2% cess? How do you see? Is it going to affect airlines and passengers much? The 2% cess, which is proposed? are generally in proportion to fare. जी See, look, Shahid asked that question, right? That what happens, where today Delhi Lucknow is selling at less than 2,500 rupees. At the same time, as the secretary said, a lot of the lower fares are in areas where there's a lot of competition. You look at Delhi, Dehradun, for instance. The rates are much higher, and it's a half an hour, flying time. So there must be many sectors like that where there is not enough competition. So this fares will be much above 2,500 rupees. So if this encourages more competition, if this encourages more service more than anything else, I think, over a period of time, what we've not been able to do over the last 100 years, we may be able to do over the next 5 or 10. So the 520 policy has been left open for the free option has been given. So how do you see that? Again, look, as the government of India, there are various people pushing and pulling them in all different directions. At least there are 3. Now, naturally as Indigo, we would want one. The others would want the other. There are at least 3 options there. There are still 3 more weeks to consult on it. So, it's broadened out the dialogue at least. So, but So for a cost-effective airline like Indigo, are we given to understand that you are not fundamentally opposed to this this 2% cess because, as you know... So, very good question. Look, at one level, if you look at the 2% cess in isolation, it looks like an increase in fares, which it will be. At the same time, on the other hand, if that collection actually goes into reducing the cost of doing business in India, let's say air traffic management becomes more efficient, ground handling becomes more efficient. Actually, I think the star of one of the stars in the policy is this really low cost airports. If that becomes a reality, whether it be many in one city or in the smaller cities really going for things that actually work, then net it's really worth it. Yeah, How at do least you certainly think worth Open it. Sky is hurting the Indian airlines. Especially, will we see more and more Gulf airlines predating on? Very difficult to say, because the open skies also is in various parts. There is one part which is in the first 5 years. There's another part which is beyond the first 5 years. Typically from an Indian carrier, right? For us, as long as it becomes easier to deploy capacity, which was one of the things that they mentioned, that now there won't be any permission required. You can easily deploy capacity between international and domestic. Again, we may choose to be primarily domestic, as Indigo has always said. But if it becomes easier to move around capacity, then that's something that simplifies the way of business is done in India. Okay, the question that I want to ask is that one thing that has been half over. ये आप सुन रहे थे मिस्टर आदित्य घोष को। देखिए, इस ड्राफ्ट सिविल एविएशन पॉलिसी के कुछ मुख्य जो बिंदु हैं मैं आपको दिखाता हूं। एक स्टॉक देखिए आप, ग्लोबल वेक्ट्रा, शायद हम इसको देखना भूल गए। मेरे ख्याल से अपर फ्रीज पे है, मैं भी आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल से अपर फ्रीज पे करीब 107.20 पर। देखिए इस ड्राफ्ट सिविल एविएशन पॉलिसी में क्या कहा गया हेलीकॉप्टर को लेकर, कि देखिए इंडिया करेंटली हैज लेस देन 300 सिविलियन हेलीकॉप्टर्स, और अगर आप ब्राजील की तुलना करें तो वहां पे 1300 हेलीकॉप्टर्स हैं इस वक्त, सिविलियन हेलीकॉप्टर्स जो हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हेलीकॉप्टर्स विल
be free to fly from point to point without prior ATC clearance, airspace below 5,000 feet. यानी 5,000 फीट से नीचे की अगर आप देखें जो ऊंचाई होगी उसमें विदाउट एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की इजाजत के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इधर उधर जा सकते हैं। और एक और चीज, सेपरेट रेगुलेशंस जो हैं वो हेलीकॉप्टर के लिए नोटिफाई कर दिए जाएंगे डीजीसी द्वारा 1 अप्रैल 2016 से। तो ग्लोबल वेक्टर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छी खबर है। कुल मिलाकर अगर आप देखें हेलीकॉप्टर के जरिए जो आवाजाही है उसको बढ़ाने का अगर आप देखें कहीं ना कहीं इसमें एक सोच है इस सिविल एविएशन पॉलिसी में। तो ग्लोबल फैक्टर इस वक्त 5% के अपर फ्रीज पर है। मैं कुछ और इनफैक्ट अभी आप मिस्टर घोष को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए 2 चीजें हैं। एक जो ग्राउंड हैंडलिंग है उसको सस्ता, उसको तर्कसंगत बनाने की कोशिश की गई है इस पॉलिसी में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और जैसा कि मैं कमोडिटी अपडेट से पहले भी बात कर रहा था कि देखिए इस पॉलिसी में एक और चीज जिस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है वो है एमआरओ यानी मेंटेनेंस और साथ ही साथ रिपेयर ऑपरेशंस जो हैं उसको प्रमोट करने के लिए, उसको तर्कसंगत बनाने के लिए, उसको एक्सपेंसिव कम करने के लिए इस पॉलिसी में बहुत बातें कही गई हैं। बाकी देखिए 5/20 पर सबकी निगाहें थी। 5/20 में 3 विकल्प दिए गए हैं, या तो इसे रखिए, छोड़ दीजिए, या फिर सार्क और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें ऑपरेशंस को शुरू करने के लिए 2 क्राइटेरियाज दिए गए हैं, उससे बात मैं करूंगा। लेकिन मैं पॉलिसी से थोड़ा देर के लिए बाहर निकल के आना चाहूंगा। देखिए डेरिवेटिव एक्सपायरी के बाद ये आज की नई सीरीज का पहला दिन है। मार्केट्स ने अपने आप को स्टेबल किया है। 8138 पर निफ्टी कारोबार कर रहा है, करीब 27 अंकों पर है। तो पहला दिन शायद पुल बैक के नाम रहेगा। आशीष अंदानी हमारे साथ हैं। आशीष, 8138 निफ्टी का लेवल है इस वक्त। अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ आपको ट्रेड करना है इस वक्त, एक लॉन्ग ट्रेड आपको आजमाना है इस वक्त, पिक करना है लॉन्ग साइड पे, तो वो कौन सा होगा? अगर आप लॉन्ग की बात करेंगे तो मैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाना चाहूंगा। आज आप देखें पूरा रिलायंस एडीएजी पैक जो है वो अच्छा चल रहा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं जरूर जाना चाहूंगा। 405 रुपए के आसपास चल रहा है। लोग 400 रुपए का एसएल लेकर के और 415 420 तक के टारगेट इसमें देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रा में। रिलायंस इंफ्रा अगर आप देखें आज सुबह से ही काफी तेज है, काफी अच्छा मूव भी दे रहा है। और अगर मैं इंडेक्स पे आऊं, इंडेक्स के जो काउंटर्स हैं उसमें आज सबसे ऊपर एनटीपीसी है। देखिए एनटीपीसी के कल नतीजे भी थे, उसके बाद देखिए आप हिंडाल्को आज स्ट्रांग पुल बैक मोड में है। लेकिन अगर विश्वास के साथ कहूं तो एक डॉक्टर रेड्डीज को देखिए 4291 का स्तर ये, और ये अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई को बस आज कुछ रुपए से चूक गया। अदरवाइज चार्टी के लिए देखिए अच्छा था। ये आपको याद होगा इसी हफ्ते नहीं, पिछले हफ्ते नहीं, इसी हफ्ते मैंने इसको लिया था स्टॉक ऑफ द डे, मेरे ख्याल से सोमवार या मंगलवार। देखिए ये चार्ट था ना, ये कह रहा था कि नहीं मुझे चलने दीजिए, और देखिए उस पर अर्निंग सपोर्ट भी मिला। और देखिए 4289 आशीष इसका जो ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई है, और जहां से शायद एक बार इसने रिवर्सल लिया है वो है मेरे ख्याल से, अगर मैं थोड़ा सा और बारीकी से देखूं, मेरे ख्याल से 4300 कुछ है। 43 मेरे चार्ट पे बहुत क्लियर मैंडेट नहीं मिल पा रहा उस पर। 4386 यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है ये उसको क्रॉस करके ऊपर निकलेगा? डॉक्टर रेड्डीज की बात करें हम? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, डॉक्टर रेड्डीज में आप देखिए सरप्राइजिंग रिजल्ट था कल। मार्केट इनफैक्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजल्ट नेगेटिव आएगा, बट पॉजिटिव सरप्राइज रहा है। मुझे लगता है अगर ये 4380 जिसे आप अभी लेवल शायद 4380 का ही कह रहे थे, अगर इसको डिसाइसिवली ब्रेक करके और टाइम वाइज कंसोलिडेट करता है अगर उस प्राइस के ऊपर, क्योंकि अभी आप देखें ये एक पर्टिकुलर रेंज में जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडर फ्लैग पैटर्न में ये स्टॉक अटका हुआ है और उसी रेंज में ये मूव करता है। तो 4280 या 4300 के 4380 या 4400 के ऊपर अगर ये रहता है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छी तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। बीच में के नतीजे आए थे। मिस्टर आकाश अग्रवाल हैं हमारे साथ बात करने के लिए नतीजों पर। स्क्रीन पर आपके नंबर्स हैं। यहाँ पे मुनाफा करीब 91% गिर कर इस बार अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर आंकड़ा है, और साथ ही साथ यहाँ पे आय घटकर 70 करोड़ से लगभग 66 करोड़ रुपए रही है। ये मिस्टर अग्रवाल नमस्कार, ये क्वार्टर काफी डिफिकल्ट रहा आपके लिए बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। एग्जैक्टली कारण क्या रहे सर इसके? हाय, ये जो डी ग्रोथ आप सेल्स में देख रहे हैं इसमें सबसे मेजर रीजन है कि हमारा जो दशहरा का सीजन जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट सीजन रहता है साल का, दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, क्योंकि वो 2014 में सितंबर में था जो कि Q2 होता है, एंड इस साल वो Q3 में है जो कि अक्टूबर में है।
सो आप अगर सिर्फ जुलाई अगस्त देखें तो वी वर सीइंग स्टडी सेल्स ग्रोथ, बट ये फेस्टिव सीजन के चेंज होने की वजह से यू सीइंग द डीग्रोथ इन सेल्स। चलिए, यानी अगर आपकी जो सारी सेल्स फोर्सेस हैं या फिर सेल्स मोमेंटम है, अगर ये Q3 में इम्पैक्ट डालेगा तो एग्जैक्टली Q3 में सेल्स वॉल्यूम कितना बढ़ने की उम्मीद है? और दूसरी चीज ये भी पूछना चाहूंगा मिस्टर अग्रवाल आपसे मैं कि आपके स्टोर्स की संख्या कितनी है और एग्जैक्टली ये थर्ड क्वार्टर के मिड तक या फिर एंड तक आपके स्टोर्स की संख्या टोटल कितनी होगी? Q3 में आपको डेफिनेटली एक हेल्दी ग्रोथ मिलेगा सेल्स टर्नओवर में लास्ट ईयर से, क्योंकि हमारा फेस्टिव सीजन जो Q2 में था वो शिफ्ट हो गया Q3 में। एंड अभी हमारे 18 स्टोर्स हैं ऑपरेशनल, एंड वी आर नॉट एक्सपैंडिंग आवर स्टोर्स। आपको पता होगा हम अभी ई-कॉमर्स लॉन्च करेंगे अपना 2-3 महीने में। दैट्स व्हाई हम कोई स्टोर्स नए नहीं खोल रहे, हम बस ऑनलाइन बिजनेस अपना शुरू करने वाले हैं। ओके, सो Q3 के एंड में भी हमारे 18 स्टोर्स ही रहेंगे। ओके, चलिए मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया इसको बातचीत के लिए और अपनी राइट के लिए नतीजों पर। तो देखिए, मोरलेस इस रिजल्ट में ये था कि इनका जो फेस्टिवल सीजन है जो वो थोड़ा सा आगे खिसक गया है, इसलिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हासिल होता है। क्या हो रहा है? सर्दियों की तैयारी। टोपी, शॉल, कंबल और थर्मल कोई भी ले लूंगी। सब एक से तो हैं। हाँ, एक जैसे दिखते होंगे, है नहीं? मतलब लक्स इन्फर्नो, इसमें है माइक्रो पॉली फाइबर्स जो इससे रखी सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल और चली सालों साल। लक्स इन्फर्नो, सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। हम टायर बनाते हैं ताकि रास्ते हंसते मुस्कुराते गुजरें, खुशियाँ छिपाए न छिपे, सफर का हर पल बने यादगार। क्योंकि आपकी खुशी में है हमारी खुशी। हमें गर्व है कि हम हैं JD पावर कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्टडी में नंबर 1। JK टायर, टोटल कंट्रोल। बालों की गुनगुनाहट का राज, आयुर्वेदिक मेघदूत सतरीठा शैम्पू। त्योहार मनाएं Hyundai के साथ, पाएं 1 लाख की बचत, जीते 1 लाख का सोना। खुशियों के हर रंग की रंगत है हम। कामयाबी की बुलंदियों को छूना जानते हैं हम। जाफरी पान मसाला, आपके स्वाद से वाकिफ हैं हम। प्रॉमिस कुछ किया था, मिला कुछ और, लेकिन हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स आपको वही प्रॉमिस करेंगे जो पूरा हो सके। एडलवाइज टोक्यो लाइफ, क्योंकि इंश्योरेंस से बढ़कर है आपकी जरूरत। यही असली इंडिया। Energia 2015, the Global Energy Summit, presents Indo-African Energy Conclave. Buyers from 15 African countries, Gulf Cooperation Council, GCC Pavilion, with participation of top energy companies from India. Connect with global energy stakeholders at Energia 2015 on 2nd, 3rd and 4th December at Ahmedabad. Book your stall now. मैं मिल्खा सिंह 84 साल का हो गया। लोग मुझे ये कहते हैं आप यंग और फिट नजर आते हैं। आप सीनियर सिटीजन हैं जो इतनी जल्दी थक गए, अभी तो आपने और भी दौड़ना है। चलो चलो, मेरी सेहत का राज संडू केसरी जीवन, जिसमें है अनमोल केसर, मोती और चमत्कारी जड़ी बूटियाँ। संडू केसरी जीवन। रिया, आज से ये कार तुम्हारी। पर ये कार तो आपकी है। त्योहार मनाएं Hyundai के साथ, पाएं 1 लाख की बचत, जीते 1 लाख का सोना। मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। इस दिवाली को कीजिए प्रेम से रोशन। प्रेम रतन धन पायो। PNG ज्वेलर्स के साथ। PNG ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द प्रेम रतन धन पायो कलेक्शन। प्रेम रतन धन पायो मैंने। Designed by and available exclusively at PNG Jewelers. Visit us today for exclusive offers on making charges. बांगड़ सीमेंट,
सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। इस दिवाली को कीजिए प्रेम से रोशन प्रेम रतन धन पायो, PNG ज्वेलर्स के साथ। PNG ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द प्रेम रतन धन पायो कलेक्शन, प्रेम रतन धन पायो मैंने। designed by and available exclusively at PNG Jewelers. Visit us today for exclusive offers on making charges. मिल्खा सिंह 84 साल का हो गया। लोग मुझे ये कहते हैं आप यंग और फिट नजर आते। आप सीनियर सिटीजन हैं जो इतनी जल्दी थक गए, अभी तो आपने और भी दौड़ना है। चलो चलो, मेरी सेहत का राज संडू केसरी जीवन, जिसमें है अनमोल केसर, मोती और चमत्कारी जड़ी बूटियाँ। संडू केसरी जीवन। नए पड़ोसी होंगे कोई, चलो देखते हैं। A ceiling changes everything. Hello, darling. Absolutely delightful. Introducing Gyprock False Ceilings. Gyprock from Saint-Gobain. ये कैसा रिश्ता जुड़ गया, साबुन पानी में घुल गया। फैमिली ट्री में देखो ये चढ़ गया, ये कैसा रिश्ता जुड़ गया, जुड़ गया। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। Enjoy the power of your choices, for you will miss them when you're no longer young. So do what you like and like what you do. There's only one life, one world. And you can make it better with the choices you make. A better life, a better world. Panasonic. I kept James Lim from missing his meeting. I'm Tom Lau, and I care. We know you expect a lot from your car. That's why we exceed your expectations with Chevrolet Complete Care. Chevrolet, find new roads. टॉप 20 स्टॉक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। मार्केट्स को देखते हैं, मार्केट्स क्या कर रहे हैं। इस वक्त निफ्टी अगर आप देखें ऑलमोस्ट जिस ट्रेजेक्ट्री में है, करीब 26 अंक ऊपर 8138 के स्तर पे। सेंसेक्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 80 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। एसएल प्रोपेक की मैनेजमेंट भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। उनके नतीजे आए थे, अगर आप देखें एक बार नतीजों को देखते हैं एग्जैक्टली कैसे रहे नंबर्स, उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट से। इस क्वार्टर मुनाफा अगर आप देखें यानी बॉटम लाइन करीब 24% बढ़कर लगभग 46 करोड़ रुपए रहा। वहीं अगर आप इस दौरान अगर आप इनकी बॉटम लाइन को ये बॉटम लाइन था, माफ कीजिएगा, मुनाफा था मेरे ख्याल से, और ये थी आय बिक्री करीब 1% बढ़कर करीब 529 करोड़ रुपए रही। मिस्टर अशोक गोयल हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मिस्टर गोयल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है सर। कंपनी इस बार की जो एग्जैक्टली जो नंबर्स थे, इसमें मैं थोड़ा सा बारीकियां पूछना चाहूंगा। एग्जैक्टली जो ड्राइविंग फोर्सेस थी वो क्या रही? बॉटम लाइन के फ्रंट पे काफी अच्छे नतीजे रहे, टॉप लाइन मोर लेस फ्लैट रहा है। एग्जैक्टली कारण क्या थे सर इसके? जी, हमारा फोकस
प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ रहा, यानी क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट की तरफ हमारा फोकस ज्यादा रहा, जो कि हमारा मिशन 20-20-20 मिशन जो हम लेके चले हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा एबिटा मार्जिन जो है 20% होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% होना चाहिए और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ अग्रसर हैं और उस दिशा में स्टेडीली हम आगे बढ़ रहे हैं। सर एग्जैक्टली इस क्वार्टर में आपके ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखें काफी स्टेबल काफी स्ट्रांग रहे हैं। एग्जैक्टली ऑपरेटिंग मार्जिन को लेकर जो आपका आउटलुक है, आई मीन Q3 के लिए, Q4 के लिए या फिर रेस्ट ऑफ द फिस्कल के लिए, वो कैसा है सर? हाँ, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बढ़ा है उसके कई कारण रहे हैं कि एफिशिएंसी तो इम्प्रूव हुई ही है। वो एफिशिएंसी हम कई तरह से मेजर करते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी है, स्क्रैप रिडक्शन है, दूसरी कैपिटल एफिशिएंसी है। दूसरी तरफ रॉ मटेरियल की यदि बात करें तो रॉ मटेरियल प्राइस तो हमारा मोटा मोटी पास थ्रू रहता है, जिसकी वजह से हमारा 5% रेवेन्यू जो है ड्रॉप हुआ है, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल प्राइसेस पास थ्रू किए हैं। उसके बावजूद भी हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, जिससे हम क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट को इंप्रूव कर पाए। सर जो आपका नॉन ओरल कारोबार है, एग्जैक्टली वहां कैसी ग्रोथ रही है और वहां को लेकर आपका उस सेगमेंट को लेकर आपका आउटलुक क्या है? जैसा पहले भी हम बात कर चुके हैं, नॉन ओरल केयर का हमारा फोकस है, आधा रेवेन्यू नॉन ओरल केयर से आना चाहिए, आधा ओरल केयर से आना चाहिए। इस समय हमारा इस क्वार्टर में नॉन ओरल केयर रेवेन्यू थोड़ा सा ही बढ़ा है, जो कि 30 बेसिस पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारी दिशा वही है 50% की तरफ बढ़ने की। सर यूरोप से काफी अच्छी खासी ग्रोथ रही है, ड्राइविंग फोर्सेस जो आपकी यूरोप रही हैं, और अभी यूरोप को लेकर आपका आउटलुक क्या है? वहां कितनी ग्रोथ और संभावना है, और कौन कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जहां पर आप लोग एक्सपेंड कर रहे हैं? ये अच्छा सवाल किया आपने। यूरोप तो हमारा फोकस एरिया है ही, जैसे मैं पहले भी कहता आया हूं। अगर करेंसी का ट्रांसलेशन का इम्पैक्ट छोड़ दें तो यूरोप 24.7% बढ़ा है यूरोप का बिजनेस, और यूरोप के बिजनेस को हम फर्दर स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट्स आर स्ट्रांग फॉर अस एंड वी आर डूइंग मेजर्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन। मेजर्ड का मतलब ये है कि हम इतना ज्यादा भी ना कर ले जाएं कि जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आए, लेकिन यूरोप विल रिमेन अ ग्रोथ टेरिटरी। दूसरी तरफ इंडिया एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक स्थिति हमारी देश की उतनी बेहतर नहीं है, जिससे एफएमसीजी सेक्टर सफर कर रहा है। और जैसे भी इकोनॉमिक स्थिति अपने देश की, इंडिया की बड़े इम्प्रूव होगी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसको ग्रो कर पाएंगे। दूसरा सवाल बार बार मुझसे पूछा जाता है चाइना के बारे में, खास तौर पे जब स्टॉक मार्केट मेल्टडाउन की वजह से। अभी तक हमारा जो अनुभव है वो ऐसा है कि वहां एफएमसीजी स्पेस पे अभी तक कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। नॉन ओरल केयर जो कैटेगरी है हमारी, चाइना में एक्चुअली इज ग्रोइंग फास्टर देन दी ओरल केयर। तो चाइना विल बी अनदर जियोग्राफी फॉर अस टू कंटिन्यू टू ग्रो। ओके, सो एग्जैक्टली Q2 में अगर आप देखें, जो डॉलर था वो काफी मजबूत था, कहाँ 63 से इसने शुरुआत की, ऑलमोस्ट ये करीब करीब 66-80 की ट्रेजेक्ट्री में आ गया था, 67 की ट्रेजेक्ट्री में आ गया था। इससे कितना इम्पैक्ट पड़ा आपके बॉटम लाइन पे? देखिए, करेंसी की वजह से हमारे बिजनेस में कोई खास नुकसान होता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतनी सारी करेंसीज में हम ऑपरेट करते हैं, और जो पेएबल अगर डॉलर पेएबल खास तौर पे यदि है, उसको हम हेज करके रखते हैं, जिससे करेंसी का कोई मेजर इम्पैक्ट आता नहीं है। इट्स ओनली अ ट्रांसलेशन इम्पैक्ट, क्योंकि हम इंडिया में इंडियन रुपीज में रिपोर्ट करते हैं, इंडियन कंपनी होने के नाते, तो खाली ट्रांसलेशन इफेक्ट है, कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसका नहीं है।
हालांकि आपने सर कहा कि आपको बहुत एक्सपेंड नहीं करना है, और लेकिन फिर भी कुछ रीजनेबल अगर आता है तो आप लोगों को के रडार पे कोई अधिग्रहण की योजना है? जी, वो रडार पे है, लेकिन अभी उसके बारे में बात करना थोड़ा जल्दी होगी। शायद इस साल के अंत तक हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद है। ओके मिस्टर गोयल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नतीजों पे बात की और अपना आउटलुक शेयर किया आपने। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए आप रजत के साथ फटाफट फ्यूचर। नमस्कार। प्रायोजक है पतंजलि एलोवेरा जेल। खतरनाक केमिकल से अपनी त्वचा को बचाएं, 7 दिनों में प्राकृतिक सुंदरता पाएं। शर्मा जी ने सर्दी से बचने के लिए क्या क्या नहीं किया। जोर से हाथ मले तो रैश हो गई, इंटरनेट पे पढ़ने की सोची तो हाथ डिस्क क्रैश हो गई। फिर ऊपर वाले अंकल ने बोला, डोंट बी अ फूल, पहनो लक्स स्कॉच वुल। मिस्टर शर्मा को मिला कुछ खास, लक्स स्कॉच वुल जो दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। प्रॉमिस कुछ किया था, मिला कुछ और, लेकिन हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स आपको वही प्रॉमिस करेंगे जो पूरा हो सके। एडलवाइस टोक्यो लाइफ, क्योंकि इंश्योरेंस से बढ़कर है आपकी जरूरत। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले, चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। इस दिवाली को कीजिए प्रेम से रोशन प्रेम रतन धन पायो PNG ज्वेलर्स के साथ। PNG ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द प्रेम रतन धन पायो कलेक्शन, प्रेम रतन धन पायो मैंने। designed by and available exclusively at PNG Jewelers. Visit us today for exclusive offers on making charges. प्रस्तुतकर्ता रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। नई एविएशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी। नई पॉलिसी में रीजनल कनेक्टिविटी सुधारने पर जोर। किराया 2500 रुपए प्रति घंटे से ज्यादा नहीं रखने का प्रस्ताव। सभी टिकटों पर 2% सेस की तैयारी। MRO को भी बड़े पैमाने पर टैक्स छूट का प्रस्ताव। सरकार को जीएसटी बिल शीतकालीन सत्र में पास होने का पूरा भरोसा। जी बिजनेस एडिटर अमीश देवगुन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, शीतकालीन सत्र में रियल एस्टेट बिल भी पेश होगा, जल्द पास होने का भरोसा। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बढ़त। सेंसेक्स में सौंक तेजी। निफ्टी 8150 के करीब पहुंचा। बैंकिंग, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी। आईटीसी, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आज जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक 7% बढ़ सकता है आईटीसी का मुनाफा। एलएनटी के मुनाफे में 4% का उछाल मुमकिन। आईसीआईसीआई बैंक के मुनाफे में 11.5% की बढ़ोतरी संभव।